امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ پاکستان کی میزبانی میں امریکہ ایران مذاکرات کا آغاز آج سے اسلام آباد میں ہوگا۔ وفود کی سطح پر مذاکرات آج اور اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، امریکی مذاکرات کار اسٹیو وٹکوف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف کریں گے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا مذاکرات کے مقام کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ حکومت نے ایران امریکہ مذاکرات کے لیے آنے والے غیر ملکی صحافیوں کو اسلام آباد پہنچنے پر ویزا دینے کا اعلان کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں لکھا کہ پاکستان میں امیگریشن حکام نے انہیں آمد پر ویزا جاری کریں گے۔ اسلام آباد مذاکرات کے سلسلے میں آنے والے تمام وفود اور صحافیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تمام فضائی کمپنیوں سے درخواست ہے کہ وہ ایسے تمام افراد کو بغیر ویزا بورڈنگ کی اجازت دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن معاہدے سے پر امید، کہا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ قریب ہو سکتا ہے۔ پیش رفت مثبت سمت میں جا رہی ہے، اسرائیل بھی اپنے حملے کم کر دے گا۔ امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسلام آباد میں جاری مذاکرات کے حوالے سے بہت پر امید ہوں، توقع رکھتے ہیں کہ سفارتی کوششیں جلد نتائج دیں گی۔ ایرانی قیادت مذاکرات میں معقول رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اگر معاہدہ نہ ہوا تو صورتحال بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد خطے میں فضائی حدود بحال ہونا شروع۔ عراق کی بغداد، بصرہ اور اربیل ایئرپورٹ سے فلائٹ آپریشن بحال کر دیا۔ 24 گھنٹوں میں عراق سے 12 پروازیں آپریٹ کی گئیں۔ اردن ایئر لائن کی عمان بغداد 2 پروازیں دوبارہ شروع۔ فلائی دبئی نے دبئی سے بصرہ کے لیے 2 پروازیں چلائیں۔ عراق ایئر ویزا کی 40 دن بعد بغداد سے استنبول پرواز روانہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے لبنان کے ساتھ مذاکرات کا اندیا دے دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ لبنان کی جانب سے بار بار مذاکرات کی اپیل پر کابینہ کو مذاکرات شروع کرنے کی براہ راست ہدایت کی ہے۔ مذاکرات کا محور حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا اور اسرائیل کے ساتھ امن پر مبنی تعلقات کا قیام ہے۔ لبنانی صدر جوزف اون نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور لبنان میں براہ راست مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ موجودہ کشیدہ صورتحال کا واحد حل اسرائیل کے ساتھ فوری جنگ بندی ہے۔ اب تک مثبت رد عمل سامنے آیا ہے۔ جنگ بندی کے اتفاق رائے میں لبنان بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کے نمائندے نے تصدیق کر دی، کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے اتفاق رائے میں لبنان میں دشمنی کے خاتمے کا نقطہ بھی شامل ہے۔ نہیں جانتا کہ لبنان میں بھی پرتشدد کارروائیوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اس بارے میں کنفیوژن کیوں ہے؟ یہ بات واضح طور پر جنگ بندی اتفاق رائے کا حصہ تھی۔ جنگ بندی کے دوران ایرانی افواج نے کسی ملک پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ اگر کسی ملک پر حملہ ہوا ہے تو وہ اسرائیل کی سازش ہے۔ ایرانی افواج کسی پر حملہ کریں گے تو اس کا اعلان کریں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان نے واضح کر دیا۔ ترجمان امریکی سینٹ کام کے مطابق جنگ بندی کے تحت ایران کے خلاف کارروائیاں عارضی طور پر روک دیں۔ جنگ میں ایران کی نیوی، بحریہ دفاعی نظام اور ڈرونز کی صلاحیت ختم کر دی۔ جنگ میں ایران کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب حکومت کا سوشل میڈیا پر بچوں اور خواتین کی ہراسمنٹ اور بلیک میلنگ کے خاتمے کے لیے بڑا اقدام۔ پنجاب سائبر کرائم یونٹ کے قیام کی منظوری دے دی۔ متاثرہ افراد کو شکایت کے لیے تھانے یا دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ موبائل یونٹ خود موقع پر پہنچ کر شکایت درج کرے گا۔ ورچوئل پولیس اسٹیشن، فرنٹ ڈیسک اور PKMF کے ذریعے بھی شکایت درج کرائی جا سکے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ اجلاس میں پنجاب آن لائن سیفٹی ایکٹ 2026 کے مسودے پر کام شروع کرنے، سائبر پولیس اکیڈمی اور سائبر پیٹرول ونگ کے قیام کی بھی منظوری۔ مریم نواز نے کہا کہ سوشل میڈیا کرمنلز کو انجام تک پہنچا کر مثال قائم کریں گے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے۔ پنجاب حکومت اور پاکستان ریلویز کے درمیان شراکت داری کا جائزہ۔ پنجاب میں 9 ریلوے روٹس بحال کرنے کا فیصلہ۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत रेलवे मंसूबों में तेजी। लाहौर रावलपिंडी मुल्तान ट्रैक्स के रीवैम्पिंग का आगाज। 8 करोड़ शहरी रेलवे शराकतदारी से मुस्तफीद होंगे। लाहौर रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन पर काम जारी। रेलवे ट्रैक्स के साथ जंगलात लगाने का मंसूबा शुरू। मरियम औरंगजेब ने मुताल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि 1 साल में जंगलात का मंसूबा मुकम्मल किया जाए। कराची में सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज 2 की मंजूरी। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ये मंसूबा शहर में जराइम की रोकथाम और सिक्योरिटी निज़ाम को मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला सिंध ने मुताल्लिका इदारों को काम तेज करने की हिदायत भी कर दी। पाकिस्तान की मईशत बहाली की जानिब गामजन। 2025 बेहतर साल करार। एशियन तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के हवाले से अपनी ताज़ा मुआशी आउटलुक की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 में मुआशी नमू में बेहतरी देखी गई है, जबकि महंगाई में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। सख्त मुआशी पॉलिसियों और इस्लाहात ने पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिया और इस्तेहकाम की बुनियाद फराहम की। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमो 2026 में 3.5% तक रहेगी, जबकि 2027 में मजीद बेहतरी के साथ 4.5% तक पहुंचने का इम्कान है। सनती शोबे की बहाली और निजी सरमायाकारी में इजाफा मईशत को मजीद तक़वीत देगा। कामयाब सिफारतकारी और पायदार मुआशी इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तान की तरसीलात ज़र्ब में नुमाया इजाफा। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक मार्च 2026 में तरसीलात ज़र्ब 3.8 अरब डॉलर तक पहुँच गए, जो फरवरी के मुकाबले में 17% ज़्यादा हैं। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी मुसलसल मुल्क की मईशत की तरक्की और माली इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मौजूदा आलमी हालात के बावजूद तरसीलात ज़र्ब की आमद में इस्तेहकाम बरकरार। मुस्तक़बिल में मज़ीद इजाफा मुतवक्किल है। पाकिस्तान में आज यौम दस्तूर मनाया जा रहा है। आज के दिन 1973 के आइन को हतमी शक्ल दी गई थी। ये आइन 14 अगस्त 1973 को नाफिज किया गया था। आइन पाकिस्तान की तैयारी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इस वक्त के सियासतदानों का अज़ीम कारनामा है। साल 71 के बाद इन सियासी अकाबरीन ने मुल्क को मुतफ़क़ा आइन दिया, जिसे 10 अप्रैल 1973 को हतमी शक्ल दी गई। आइन के मुताबिक पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होगा। वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होगा और इसे अक्सरियती जमात मुंतखब करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1973 के आइन को पाकिस्तान की जमहूरी शनाख्त, वफाकी तवाज़ुन और शहरी हुकूक की ज़मानत करार दे दिया। यौम दस्तूर के मौके पर सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ये आइन सिर्फ कानूनी दस्तावेज़ात नहीं बल्कि रियासती इदारों और हुक्मरानों की निज़ाम के लिए रहनुमा उसूल है। मुकम्मल अमल दरामद से ही जमहूरियत और इंसाफ का क़याम मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 10 अप्रैल 1973 को मंजूर होने वाला आइन अवाम और रियासत के दरमियान एक मुक़द्दस मुआहिदा है, जो दोनों के हुकूक और फ़राइज़ का तयन करता है। पाकिस्तान का आइन 1973 कौम की मुतफ़क़ा दानिश, जमहूरी जद्दोजहद और वफाकी वहदत की अलामत है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का यौम दस्तूर पाकिस्तान के मौके पर पैगाम। कहा कि यौम दस्तूर आइन और कानून की बालादस्ती जारी रखने के अज़्म का दिन है। शहीद क़ायदे अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौम को एक मुतफ़क़ा आइन दिया। कौमी इत्तेहाद और यकजहती ही शहदा की क़ुरबानियों का हक़ीक़ी समर और एक मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़मानत है। सिंध में किफ़ायत शेयरी पॉलिसी के तहत नए कारोबारी औकात नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ शाम 7 से रात 11:30 बजे तक डिनर की इजाज़त होगी। ज़रूरी सर्विस बशमूल अस्पताल और पेट्रोल पंप मुस्तस्ना करार। शादी हॉल्स को रात 12 बजे तक तकरीबात की इजाज़त होगी। अहकामात हफ्ते के 7 दिन बशमूल हफ्ता और इतवार नाफिजुल अमल रहेंगे। हुकूमत ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की है कि वो सिंध पुलिस के साथ मिलकर इन अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। कराची में आईजी सिंध जावेद आलम मोटो की ज़ेर सदारत सीटीडी हेडक्वार्टर में डिजिटाइजेशन से मुतालिक अहम इजलास। सीटीडी के तमाम अहम उमूर को डिजिटल सिस्टम में मुंतकिल करने पर तफसीली ब्रीफिंग।
सिंध पुलिस को रेड बुक को जदीद AI फीचर्स के साथ डिजिटलाइज कर दिया गया। हाई प्रोफाइल मुल्ज़मान के रिकॉर्ड के लिए खुसूसी अंदराज और इखराज बोर्ड कायम। डिजिटल रेड बुक को ऑनलाइन सर्विलेंस और मॉनिटरिंग ऐप से मुंसलिक करने का फैसला। IG सिंध ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद आलात की फौरी ज़रूरत पर जोर देते हुए मुतालिका तजावीज़ जल्द हुकूमत को पेश करने की हिदायत की। शहर कायद में सानवी तालीमी बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात आज से शुरू हो गए। 3,80,000 से ज़्यादा तलबा और तालिबात शिरकत कर रहे हैं। इम्तिहानी अमल को शफाफ और मुनज़्ज़म बनाने के लिए हुकाम की जानिब से खुसूसी इंतज़ामात। पर्चों की बरवक्त तरसील के लिए शहर के 18 टाउन्स में 25 हब कायम। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ सिक्योरिटी सख्त। नकल की रोकथाम के लिए करीबी फोटो स्टेट दुकानें भी बंद रखने का फैसला। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार खोसा 90 साल की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक जुल्फ़िकार खोसा कुछ अरसे से लाहौर के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वो 1962 में पहली बार रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे। बेशतर जिंदगी मुस्लिम लीग में रहे और मुतालिका मरतबा सूबाई वजीर, मुशीर, सेनेटर, गवर्नर पंजाब के ओहदे पर फाइज रहे। 2018 के इंतखाबात से कबल वो PTI में शामिल हुए थे। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में आज कोयटा ग्लेडिएटर्स आमने सामने आएंगे। मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। टीम कोयटा की क़यादत साउद शकील और रावलपिंडी की कप्तानी मोहम्मद रिजवान करेंगे। दोनों टीमें अब तक PSL 11 में 4 मैचेस खेल चुकी हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स एक मैच में कामयाब। रावलपिंडी के हिस्से में कोई फतह ना आ सकी। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लेडिएटर्स का 6वां, रावलपिंडी का 8वां नंबर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेडिकल शोबे में नई भर्तियों का ऐलान कर दिया। PCB में सीनियर और जूनियर स्पोर्ट्स डॉक्टर्स की आसामियां शामिल। फिजियोथेरेपिस्ट और स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट की भर्तियों का इश्तिहार जारी। खिलाड़ियों की फिटनेस और तिब्बी सहूलियात बेहतर बनाने का फैसला। दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 24 अप्रैल मुकर्रर। भर्तियां क्रिकेट के स्ट्रक्चर में बेहतरी और प्रोफेशनल मेडिकल स्पोर्ट की तरफ अहम कदम करार। फीफा सीरीज में पाकिस्तान विमेन टीम की ट्रक्स एंड केकोस जराइज के खिलाफ 8-0 से तारीखी फतह। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल की इंटरनेशनल सतह पर सबसे बड़ी जीत। मैच आबिदजान में खेला जाएगा। कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी। पहले हाफ के अख्ताम तक 4-0 की बढ़तरी हासिल। लैला बनारस और अफसा मुश्ताक की शानदार कारकर्दगी। मुतअद्दिद गोल स्कोर। पाकिस्तान ने साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिया। मालदीव के खिलाफ 7-0 की फतह पीछे छोड़ दी।